Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss second part of topic of maintenance. In the previous lecture, we have discussed who are entitled to claim maintenance under Section 125. Now, we will discuss the grounds for refusal of maintenance. Under which circumstances woman and wife is not entitled to get maintenance, we will discuss in today's lecture, as well as we will discuss procedure of maintenance, as well as we will discuss alteration of order of maintenance and the jurisdiction. So all the concept we will discuss in today's lecture. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है सेक्शन 125 सीआरपीसी का, जिसमें वाइफ मेंटेनेंस कब क्लेम नहीं कर सकती, वाइफ को मेंटेनेंस कब रिफ्यूज किया जा सकता, उसका प्रोसीजर क्या है, अल्टरेशन ऑफ मेंटेनेंस का कंसेप्ट क्या है, उसका प्रोसीजर, एग्जीक्यूशन, इन्फोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर, सब आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। So maintenance of wife, children and parents, part second. In the first part we have discussed who are entitled to claim maintenance. Wife is entitled to claim maintenance. Minor, legitimate or illegitimate children are entitled to claim maintenance. Major, illegitimate or legitimate children are entitled to claim maintenance if they are unable to maintain themselves due to any physical or mental abnormality. And the fourth one is parents are entitled to claim maintenance. Subclause 1 we have discussed. Now we will discuss subclause 2, section 125 subclause 2. And any allowance of maintenance or interim maintenance shall be payable from the date of order or from the date of application. तो जब कभी भी ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस कोड ग्रांट करेगा तो दो तरीके से ग्रांट करेगा। एक तो ये ऑर्डर करेगा कि फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन मेंटेनेंस दिया जाए, या तो फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ये कोर्ट पे डिपेंड करता है, कोर्ट किस तरीके से ग्रांट करेगा। सेक्शन 125 2A, lump sum amount not exceeding 5 years. The court is having a power to grant a maintenance as a lump sum amount and that is not exceeding 5 years. तो कोर्ट क्या कर सकता है, दोनों पार्टीज अगर तैयार हैं तो कोर्ट लम्प सम अमाउंट भी ग्रांट कर सकता है। अब लम्प सम अमाउंट जो भी, फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज़ पर मंथ है तो 2000 रुपीज़ के हिसाब से ज़्यादा 5 साल तक का लम्प सम अमाउंट कोर्ट ग्रांट करेगा। सेक्शन 125 सब क्लॉज 3, if any person fails to comply the order of the court, imprisonment for 1 month or till the amount paid. अगर कोर्ट ने मेंटेनेंस ग्रांट किया और जो पर्सन, हस्बैंड अगर फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस पे नहीं करता है तो उसको 1 महीने का अगर मेंटेनेंस पे नहीं किया तो 1 महीने की इम्प्रिजनमेंट, 1 महीने की जेल होगी उसको, और 1 महीने की जेल कंप्लीट होने के बाद भी वो मेंटेनेंस अमाउंट उसको देना ही पड़ेगा वाइफ को। नाउ सब क्लॉज 4, ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल ऑफ मेंटेनेंस. So the first ground for refusal of maintenance is if she is living in adultery. When wife is not entitled to claim maintenance, wife कब maintenance wife को नहीं मिलेगा, तो पहला ground है refusal of maintenance का, if she is living in adultery. So suppose if the wife is living in adultery, she is not entitled to get maintenance. अगर wife adultery में, wife किसी दूसरे person के साथ अगर उसका physical relation है तो शी इज नॉट इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस। संजीवनी रामचंद्र कोंडलकर वर्सेस रामचंद्र भीमराव कोंडलकर. द बॉम्बे हाई कोर्ट जस्ट रिसेंटली ऑन December 18, 2019 has once again that if allegation of adultery are proved against the wife in a marriage, she is not entitled to maintenance. So in this particular case, the court held that if the allegation of adultery has been proved, wife is not entitled to claim maintenance. अगर अडल्ट्री के एलिगेशन वाइफ पे प्रूव हो जाते हैं कि उसका किसी और मर्द के साथ रिलेशन है तो वैसे वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा सेक्शन 125 में। वाइफ इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस ओनली इफ शी इज एबल टू प्रूव दैट ऑल द एलिगेशन ऑफ अडल्ट्री आर रॉन्ग। वाइफ को मेंटेनेंस कब मिलेगा, अगर वो ये प्रूव करती है कि जो भी अडल्ट्री के चार्जेस लगाए गए उस पर वो रॉन्ग है। अगर अडल्ट्री के चार्जेस प्रूव होते हैं वाइफ पे तो वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। Second ground is that without sufficient reason she refuses to live with her husband. Anil, son of Shri Sugandh Chandra Jain versus Shrimati Sunita, wife of Shri Anil Kumar Jain, where the wife had voluntarily left her husband's house without any reason
कि यहाँ पर वाइफ ने अपने हस्बैंड का घर छोड़ा विदाउट एनी रीजन, देन शी वॉज नॉट थ्रोन विथ फोर्स फ्रॉम हर मैट्रिमोनियल होम, कि उसको जबरदस्ती घर से नहीं निकाला गया, उसने खुद ने बगैर किसी रीजन के घर छोड़ा। शी वॉज नॉट फोर्स टू लीव हर मैट्रिमोनियल होम, कि उसको फोर्स भी नहीं किया गया। शी वुड नॉट बी इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड, तो उसको मेंटेनेंस नहीं ग्रांट किया कोर्ट ने। क्यों? क्योंकि विदाउट सफिशिएंट रीजन शी रिफ्यूजेस टू लिव विथ हर हस्बैंड, बगैर किसी रीजन को से के वो हस्बैंड के साथ रहने से उसने मना किया, उस ऐसी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। नाउ अनदर ग्राउंड इज दैट, another case regarding the same ground is Dr. Swapna Kumar Banerjee versus the state of West Bengal. The question before Supreme Court is whether a wife who has been divorced by the husband on the ground that the wife has deserted him is entitled to claim maintenance under section 125 of CRPC. यहाँ पर ये केस में कोर्ट ने डिसाइड किया कि यहाँ पर हस्बैंड ने वाइफ को डाइवर्स दिया, ये बेस पे कि वाइफ उसको छोड़कर चले गई थी। फिर भी कोर्ट ने ये कहा कि डाइवर्स्ड वाइफ इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस, और यहाँ पर वाइफ को मेंटेनेंस ग्रांट किया। समझ रहे हो? डाइवर्स वाइफ थी, उसने डाइवर्स दिया हस्बैंड ने, इसलिए हस्बैंड की लायबिलिटी यहाँ क्रिएट हुई। कोर्ट अवार्डेड ₹10,000 एज मंथली मेंटेनेंस टू द वाइफ, यहाँ पर कोर्ट ने वाइफ को 10,000 मेंटेनेंस अमाउंट ग्रांट किया। थर्ड ग्राउंड इज दैट लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, मोयाबाई वर्सेस विश्राम सिंह, डाइवर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट डज नॉट डिप्राइव द वाइफ टू क्लेम मेंटेनेंस। अगर डाइवर्स होती है म्यूचुअल कंसेंट के जरिए तो डाइवर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट इज नॉट अ ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ मेंटेनेंस। तो म्यूचुअल कंसेंट के साथ डाइवर्स होती है तब भी वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है और हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। बट इफ दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, डाइवर्स नहीं है बल्कि वो म्यूचुअल कंसेंट से एक दूसरे की सम्मति से अलग अलग रह रहे हैं, उस सिचुएशन में वाइफ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है, ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल ऑफ मेंटेनेंस है। इफ दे आर लिविंग सेपरेटली विदाउट डाइवर्स then only wife is not entitled to get maintenance under section 125 of CRPC. अगर वो अलग अलग रह रहे हैं बगैर डाइवर्स का तब वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट इज वन ऑफ द ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ मेंटेनेंस। अब यहाँ पर जो ऑर्डर एक मेरे हिसाब से एक ग्राउंड रह गया अपना, so these are the grounds which we have already now there is a question महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, वाइफ शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू रिसीव मेंटेनेंस अमाउंट फ्रॉम द हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड if she is living in adultery, she refuses to live with her husband without sufficient reason, if they are living separately by mutual consent, all of the above. अगर हम देखें तो ये तीनों की तीनों रीजन है जिसमें वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। नाउ प्रोसीजर इज लेट डाउन सेक्शन 126 में प्रोसीजर है, प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 में बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट वेयर ही इज और where he or his wife resides or where he last resided with his wife or as the case may be with the mother of a illegitimate child। तो कहाँ पर मेंटेनेंस का पिटीशन फाइल हो सकती है? तो जहाँ पर हस्बैंड है वहाँ पर फाइल होंगी, जहाँ पर हस्बैंड या जहाँ पर वाइफ है वहाँ पर भी फाइल हो सकती है, जहाँ पर दोनों साथ में लास्ट बार जहाँ पर रहे हैं वहाँ पर भी मेंटेनेंस का केस फाइल हो सकता है। लास्ट रिसाइडेड वेयर द पार्टीज हैव नो होम, लास्ट रिसाइडेड का कंसेप्ट जहाँ है कि जहाँ पर पार्टीज का घर नहीं हो। बहुत से लोग आज यहाँ पर तो कल कहीं पर तो परसों कहीं पर ऐसा होता है। तो मेंटेनेंस जहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ लास्ट में साथ में थे उस डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में, उस जुरिस्डिक्शन में मेंटेनेंस का पिटीशन फाइल हो सकता है सेक्शन 126 में। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है जेएमएफसी में, एन एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बाय फादर अगेंस्ट हिज सन हैज टू बी फाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर द सन रिसाइड, वेयर बोथ द सन एंड द फादर लास्ट रिसाइडेड टुगेदर, वेयर फादर रिसाइड्स आइदर 1 और 2 और 3। अगर हम यहाँ देखें
तो करेक्ट आंसर है वेयर द सन रिसाइड, जहां पर सन रहता है वहां पर फाइल करना पड़ेगा। नाउ सेक्शन 126 सब क्लॉज 2, all evidence in such proceeding shall be taken in the presence of the person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made. However, if for good reason personal attendance is dispensed and the evidence take in presence of pleader. So all the evidences in the case of maintenance shall be taken in the presence of husband, in the presence of party against whom the order of maintenance is proposed to be made. And in an exceptional circumstances, personal attendance of that particular person may be exempted and the evidence may be taken in presence of pleader. तो जितने भी evidence होंगे वो husband के प्रेजेंसी में होगी अगर वाइफ मेंटेनेंस क्लेम करती है तो, और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हस्बैंड की प्रेजेंसी को एग्जाम किया जा सकता है। उस सिचुएशन में उसके एडवोकेट के प्रेजेंस में एविडेंस होंगे। देन if magistrate is satisfied that the person willfully avoids the service or neglect to attend the court, the magistrate may make order ex parte. अगर फॉर एग्जांपल हस्बैंड को नोटिस गई और हस्बैंड कोर्ट में प्रेजेंट नहीं रह रहा है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो इंटेंशनली नेग्लेक्ट कर रहा है, उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट को पावर है वो हस्बैंड को सुने बगैर जजमेंट हस्बैंड के अगेंस्ट में पास कर सकता है, एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर सकता है। एक्स पार्टे ऑर्डर सो मेड मे बी सेट असाइड, हस्बैंड बाद में आके अगर कोर्ट में अपीयर होता है तो जो एक्स पार्टे ऑर्डर कोर्ट ने पास किया वो सेट असाइड भी कर सकता है। फॉर गुड क्लॉज शोन ऑन एप्लीकेशन मेड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट देयर ऑफ, 3 महीने के अंदर वो ऑर्डर के अगर एप्लीकेशन करता है हस्बैंड या वो पार्टी जिसके अगेंस्ट में मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हुआ तो उस सिचुएशन में कोर्ट सेट असाइड कर सकता है ऑर्डर। सेक्शन 126 सब क्लॉज 3, द कोर्ट इन डीलिंग विद एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 फॉर मेंटेनेंस मे मेक एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर एज टू कॉस्ट का ऑर्डर भी पास कर सकता है। फॉर एग्जांपल विटनेस को कोर्ट में आने के लिए जो खर्चा है उसका खर्च का ऑर्डर पास कर सकता है कोर्ट सेक्शन 126 सब क्लॉज 3 में। नाउ सेक्शन 127, अल्टरेशन इन अलाउंसेस on proof of a change in the circumstances of any person receiving under section 125A a monthly allowance, the magistrate may make such alteration. अगर जो चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हो गए, फॉर एग्जांपल आज जो नीड थी वाइफ की, नीड बढ़ गई, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, जो मंथली अलाउंस है उसको अल्टर कर सकता है, कम ज्यादा करने का मैजिस्ट्रेट को पावर है। व्हेन इट अपीयर टू द मैजिस्ट्रेट दैट एनी ऑर्डर अंडर सेक्शन 125 वुड बी कैंसल्ड और वेराइड ही शैल कैंसल द ऑर्डर। मैजिस्ट्रेट को कभी भी ऐसा लगता है कि जो ऑर्डर किया हुआ है मेंटेनेंस का वो कैंसिल किया जाए तो मैजिस्ट्रेट को पूरा पावर है वो ऑर्डर कैंसिल भी कर सकता है। वेयर एनी ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 125 इन फेवर ऑफ अ वुमन, द मैजिस्ट्रेट शैल, इफ ही इज सेटिस्फाइड फॉर the woman has after the date of such divorce remarried, cancel such order as from the date of her remarriage. तो अगर फॉर एग्जांपल मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि मेंटेनेंस अमाउंट ग्रांट करने के बाद वो वाइफ है, वो वुमन है जिसके अगेंस्ट जिसको मेंटेनेंस अलाउंस ग्रांट किया गया है, उसने दूसरी शादी कर ली, तो उस सिचुएशन में वो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, वो ऑर्डर को कैंसल कर सकता है मेंटेनेंस के ऑर्डर को। वाइफ रिसीव द होल ऑफ द सम विच अंडर एनी कस्टमरी और पर्सनल लॉ अप्लीकेबल टू द पार्टीज वाज पेएबल ऑन डाइवोर्स। अगर वाइफ को ऑलरेडी कस्टम के चलते उसको डाइवोर्स के टाइम पे पूरा अमाउंट दे दिया गया, उस सिचुएशन में भी मैजिस्ट्रेट कैंसल कर सकता है मेंटेनेंस का ऑर्डर। द वुमन हैज ऑब्टेन्ड अ डाइवोर्स एंड शी हैड वॉलंटरीली सरेंडर हर राइट टू मेंटेन। वाइफ ने खुद ने डाइवर्स लिया और डाइवर्स के वक्त उसने अपना जो मेंटेनेंस है, राइट ऑफ मेंटेनेंस, वो खुद ने सरेंडर किया। अगर ऐसी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में भी मैजिस्ट्रेट मेंटेनेंस का ऑर्डर कैंसिल कर सकता है सेक्शन 127 में। नाउ सेक्शन 128, इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस शैल बी गिवन विदाउट पेमेंट टू द पर्सन इन हुज फेवर इट इज मेड और टू हिज गार्डियन। जिसके फेवर में मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया गया उसको एक कॉपी दी जाएगी जजमेंट की या उसके गार्डियन को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के, और टू द पर्सन टू हुम द अलाउंस इज टू बी पेड। और जिस पर्सन के अगेंस्ट में ऑर्डर पास हुआ, फॉर एग्जांपल हस्बैंड के अगेंस्ट में ऑर्डर पास हुआ, उसको भी एक कॉपी दी जाएगी। Such order may be enforced by any magistrate in any place where the person against whom it was made may be। तो वो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस वो मैजिस्ट्रेट इन्फोर्स करेगा जिसके जुरिस्डिक्शन में वो हस्बैंड रह रहा है। So this is the particular second part of
maintenance. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.